substitution of algebra in the previous chapter. So today we are going to start with question number 1, and that is A part. Very easy. X plus 8 is equal to 15. So basically solve each of the following equations. So we are going to find out the value of x here, and x is what? What is x? Is it a constant or a variable? Variable. Yes. And what is it? Constant. 15 is constant. So we just need x here on this side of equal to. So what we are going to do, we are going to transport this 8 there. So this is plus 8. What will happen to that plus 8? If I am going to make it jump over here, plus 8 will be minus 8. ठीक है? तो किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को जब हम इक्वल्स टू के उस साइड पर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर प्लस का है तो वो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का. और अगर वो माइनस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो वहां जाके क्या हो जाएगा? और अगर डिवाइड हो रहा है यहाँ तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. वेरी गुड. सो x 15 minus 8 will be 7. That's your answer. Now let's do B part. That is x plus 9 equals to minus 5. So हमें क्या करना है? x को यहीं रहने देना और ये जो 9 है इसको उधर ले जाना है. तो उस तरफ पे ऑलरेडी क्या मौजूद है? minus 5 is there. So minus 9 will be there. तो x की वैल्यू क्या आएगी? दोनों माइनस के ऐड होंगे, साइन माइनस का लगेगा. 9 plus 5 will be 14, but sign is of minus, so minus 14 is the answer. आगे चलें. Yes, sir. So next is x minus 5. X minus 5 is equal to 17. Yes, sir. Okay, so C part is X minus 5 is equal to 17. x minus 5 is equal to 17. So हमें x यहीं रहने देना है. We will transport minus 5 on that side of equals to. So 17 है ऑलरेडी वहां पे, और minus 5 जब वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? plus 5. So x is equal to 22. That's the answer. Okay, question number 1, D part is y is equal to Y minus 7 is equal to minus 3. Yeah, question number 1, D part is y minus 7 is equal to minus 3. So we have to keep y here, and what is there on the other side of equal to? Minus 3. So that 7 will goes there, it will be plus 7. So एक माइनस का हो एक प्लस का हो, होता माइनस का है लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगा देते हैं. क्या करेंगे हम? y is equal to plus 4. That's the answer. It is minus 2.7, then it is plus a, then it is equals to minus 6.4. Is it that? The question is correct? Okay, अब आपके पास डेसिमल में वैल्यू है and you have one variable that is a. So आप क्या करेंगे? a को ही रहने देंगे यहाँ पे, और बाकी जो आपकी वैल्यूज हैं वो इक्वल टू के उस साइड पे ले आओ. इक्वल टू के उस साइड पे ऑलरेडी minus 6.4 is available. So that minus 2.7 will be plus 2.7. So as you know, one value is of minus and one value is of plus. What we have to do? We have to minus, but we have to apply the sign of bigger value. What is the bigger value? Minus sign will be there. Now let's do 6.4, 2.7 minus. So
that cannot go. It will be 5 and 14, 7 point, and that will be 3. So 3.7. So 3.7 is your answer. Let's do question 2, and I'm starting it from the last part, J part. Yes. 1 whole 1 by 2 minus 2y is equal to 1 by 4. Okay, so here's the situation. You have the constant in the form of fraction, and you have one constant that is multiplying with the variable. We call it coefficient of that variable. So first क्या करेंगे हम, minus 2y will stay here, और वहाँ पे इक्वल टू के उधर क्या है, 1/4 है, और ये जब उधर जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस का, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 whole 1 by 2. Let's convert this mixed number into the fraction form. How are we going to convert it? Yes guys, 2 multiplied by 1 is equal to 2. 1 times 2 plus 1, 3 by 2. Okay, to subtract these two values, what we have to do? We have to make it a like fraction. How we are going to make it a like fraction? We have denominator 4 here, but we have denominator 2 here. So how we are going to make it 4? By multiplying 2 on both sides, on with the numerator and the denominator as well. So what we get? 4 minus 6 by 4. Minus 2y will be there. Okay, so minus 2y is equal to, this is, we will get 4 and 1 minus 6. What is the answer of 1 minus 6? Minus 5 by 4, and we have minus 2y here. So what 2 is doing with y? What is the relationship between 2 and y? Yes, what is the relationship between 2 and y? 2y. What is the, is it multiplying, is it plus, minus, or dividing? 2 is doing with y. What 2 is? It's multiplying. So what is the rule if we are going to change, if we are going to transfer the multiplied value on the other side of the equal to? What will happen to it? Yes, that will divide. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रह जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 जब डिवाइड होगा वहाँ पे, तो ऑलरेडी वहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, 4 हो रहा है ना, तो 4 के साथ हम इस 2 को लिख देंगे. ठीक है, दोनों डिवाइड हो गए. क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 by 8. अब यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 by 8. दैट इज आवर आंसर. Okay, I part is there. So I part is 7y minus 2 whole 3 by 4 is equal to 1 by 2. Okay, so y की वैल्यू निकालनी है हमने बेसिकली. What we have to do, 7y ये यही रहेगा और बाकी को इक्वल टू के साइड पे ले जाएंगे. इक्वल टू के साइड पे ऑलरेडी 1 by 2 मौजूद है, तो ये जब माइनस का 2 whole 3 by 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 whole 3 by 4. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, क्या करना है अब हमने? सर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 by 2. पहले तो इसको सॉल्व करें ना, इनटू द फ्रैक्शन, मिक्स नंबर इनटू द फ्रैक्शन, तो क्या होगा, 4 2 8 plus 3 11 by 4. अब इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है. कैसे बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन? इट विल बी 2 by 4 plus 11 by 4. ठीक है जी. अब क्या आएगा आंसर, 13 by 4 and 7y. यहां तक क्लियर है आप लोग? अब 7 क्या हो रहा है y के साथ?
मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे y 13, वहां जाके जो ऑलरेडी डिवाइड करा है उसके साथ लिख देंगे। तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू 13 बाय 28। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, तो दैट इज द आंसर। Sir, can you can you scroll the screen? H part is minus 3y minus 7.8 is equal to minus 9.6. ओके, सो हमें यहाँ क्या इक्वल टू के साइड पे क्या लेने देना है? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहने देना है? -3y, और -7.8 को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ऑलरेडी वहां पे क्या मौजूद है? और जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये वहां पे प्लस। वेरी गुड क्लास। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को, एक माइनस का एक प्लस का है, होगा माइनस का, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू, साइन बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो हमारे पास साइन इसका आएगा। 9.6 को 7.8 से माइनस कर लें, 6 से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे हम, इसको 8 बनाएंगे, 8 आ जाएगा, डेसिमल 8 में से 1, हमारे पास आ गया 1.8। ठीक है, और यहाँ पे क्या मौजूद है? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है? -3y। अब ये माइनस तो हम माइनस से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 3y, और राइट हैंड साइड पे क्या है? 1.8। अब 3y क्या हो रहा है? बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? अच्छा चलें, इसका डेसिमल कैसे खत्म होगा? 1 0 हो गया, तो हमारे पास आया 3y इज इक्वल टू 18/10, और जब ये 3 यहाँ से हम लेकर इधर जाएंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? डिवाइड वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आएगा आंसर फाइनल? y इज इक्वल टू 18/30। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, हम डिवाइड करेंगे 6 दोनों को, 3/5, तो दिस इज योर आंसर। आई एम डूइंग क्वेश्चन 2G पार्ट, एंड दैट इज 4y minus 1.9 is equal to 6.3। y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 4y विल रिमेन हेयर, और इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे हम पहले ऑलरेडी 6.3 मौजूद है, और -1.9 जब वहां ले जाएंगे तो प्लस का, दोनों ने ऐड होना है। देखें, ऐड कर लें, 3 और 9, इट्स G पार्ट बेटा। क्वेश्चन 2 12 बन जाएगा, डेसिमल आएगा, 1 कैरी है, और ये 8 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 8.2। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? तो हम ये आ जाएगा 82/10, और यहाँ पे क्या आएगा? 4y। 4 क्या हो रहा है y के साथ? तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो डिवाइड वाले के साथ लिख लेंगे हम इसको, तो क्या आएगा? 82/40। जी हाँ, ये सिंप्लीफाई होगा। ये आप ये भी देख सकते हैं कितने 40 हैं 82 में? 240, बाकी क्या बच जाएगा? 2/40। तो आपका फाइनल आंसर होगा y इज इक्वल टू 2 होल 1/20। दैट्स योर फाइनल आंसर।